चलो एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन शुरू करें। तो एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन एंड एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन मतलब एवोल्यूशन विच इज कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट? सो ह्यूमन एक्टिविटीज को कंसिडर करेंगे हम लोग। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को कंसिडर करेंगे एंड लेट मी टेल यू कि इट वाज सीन इन इंग्लैंड 1850। बिफोर 1850 এনসিইআরটি তে এরকম ভাবে লেখা আছে, খোলো 131। 131 মানে তোমার ওইটা, হ্যাঁ 116 হবে, 117 হবে, 115। আরে বাবা তুমি পড়ো না প্যারাগ্রাফটা, শুরু করো। कलेक्शन ऑफ मॉथ बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक देखो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 में जब एक सैंपल कलेक्ट किया गया, उस टाइम पे क्या था? नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयरफॉर नो पॉल्यूशन। पॉल्यूशन वाज ग्रेटली रिड्यूस्ड, राइट? पॉल्यूशन वाज ग्रेटली रिड्यूस्ड, पॉल्यूशन बहुत कम था। और पॉल्यूशन कम होने के वजह से व्हाट हैपेंड, द एटमॉस्फेयर वाज क्लियर, was clean. Therefore, black colored moth, black colored peppered moth, हम लोग कहते हैं पेपर्ड मॉथ क्योंकि उसका विंग्स जो है पेपरी विंग्स है ना, इसीलिए। एंड दिस इज बिस्टन बिटुलेरिया, बिटुलेरिया। और व्हाइट कलर्ड पेपर्ड मॉथ, पेपर्ड मॉथ, बिस्टन कार्बोनेरिया, कार्बोनिकाओ बोले, कार्बोनिकाओ भी कहते हैं। तो एनीवे, तो in these two, between these two, what happened was the atmosphere was clean. So Biston Betuleria, Biston Carbonaria, ये जो है the black moth had a contrasting background, ताई तो they had a contrasting background. So they had a contrasting background, whereas the white colored moth, इसमें क्या है? They could mimic with the background. They could mimic with the background. तो mimic with the background माने अगर background का कलर white है तो ये अगर white colored moth है तो white and white mimic करेगा, therefore they cannot be identified by the predators. तो predators उसको मार नहीं पाएगा. So in this case they have a contrasting background and therefore could easily be identified, could easily be spotted by the predators, और क्या होगा? प्रीडेटर्स मारेगा इन लोगों को, है ना, इसको मार देगा। एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ द ब्लैक कलर्ड मॉथ वाज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, तो दे वर किल्ड एंड देयरफॉर देयर नंबर ड्रास्टिकली ड्रॉप्ड। सो इन अ कंडीशन ऑफ 1850 देखा गया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट नहीं हुआ तो उस टाइम पे एकदम एटमॉस्फेयर वाज क्लीन, कोई बैकग्राउंड सूट डिपोजिशन नहीं था, कोल्ड डिपोजिशन नहीं था, तो इसीलिए व्हाइट कलर्ड मॉथ एक कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड नहीं मिला, एकदम मिमिक कर सकता था, व्हाइट कलर है और एटमॉस्फेयर भी व्हाइट, मतलब बैकग्राउंड भी व्हाइट कलर्ड है, हाँ बैकग्राउंड भी व्हाइट कलर्ड। तो इन दैट कंडीशन व्हाट हैपेंड वाज
So they could mimic with the color of the background. But when you think of the black colored moth, they had a contrasting background. তাহলে বাইরে পেছনটা white আর ও নিচে black color, তাহলে ওকে easily predict করতে পারছে। So what happened? Their number drastically reduced. तो ये एक condition था in 1850. अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? Then industrialization set in. Then industrialization set in. Then industrialization set in. तो industrialization जैसे ही हो गया, then what happened? Industrialization के वजह से what happened? The pollution increased. Just reverse होगा. The pollution increased, and therefore the white colored moth had a contrasting background. The white colored moth had a contrasting background. तो व्हाइट कलर्ड मॉथ को एक कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड मिला, है ना? whereas black colored moth could mimic with the background. Black colored moth could mimic with the background. So in this case, white colored moth contrasting background, so therefore white colored number reduced, number drastically reduced, and इसका number increase हो गया, इसका जो number है वो increase हो गया, तो इसका number increase हो गया, इसका number reduced हो गया. In that condition what will happen? अब फिर से देखा गया pollution was controlled. Thereafter pollution was controlled, और control करने के बाद the original condition reverse हो गया, मतलब फिर से pollution control किया, फिर से pollution कम हो गया atmosphere में, and therefore the western beetle area मतलब white colored moth का number increase हुआ और dark colored moth का number decrease हो गया. तो pollution control करने के बाद approximately around 1920 अगर observe किया गया, at that time observe किया गया, तो white colored moth का number will again increase, whereas black colored moth का number decrease करा. So in this case, what did you observe? Black colored moth का number decrease करा. याद रखिएगा, in this case what happened? पहले तो एक situation था, pollution आया, situation reverse हो गया, फिर से pollution को control किया गया, situation फिर से reverse हो गया, है ना? So this thing happened, original condition came back. So here what was the case? In this concept, अगर इसको हम लोग ग्राफिकली डिनोट करें तो इसमें क्या है? माने ड्यू टू द चेंज, ये है चेंज. यू सी हियर, इफ दिस इज द व्हाइट कलर्ड मॉथ, है ना, वेस्टर्न बिटुलेरिया, एंड इफ दिस इज वेस्टर्न कार्बोनेरिया, सो हियर यू सी हियर, जैसे जैसे पोल्यूशन इंक्रीज हुआ तो ये शिफ्ट होकर इधर चला गया, इसका डोमिनेंस हो गया, और इधर से फिर इधर आ गया. तो कभी इधर से इधर शिफ्ट हुआ, कभी इधर से इधर शिफ्ट हुआ. गॉट इट? तो आपने देखा, एंड दिस इज द केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. देखो, अल्टीमेटली नेचर को सिलेक्ट करना है. इफ नेचर डज नॉट सिलेक्ट, कोई भी किसी का भी नंबर इंक्रीज नहीं हो सकता. सो नेचर हैज टू सिलेक्ट. तो इट्स अ केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. एंड व्हाट काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज इट इंडिकेटिंग? देखो, ये जो मीन कर्व है, ये तो दाहिने तरफ शिफ्ट हो गया, फिर ये इधर से इधर शिफ्ट हो गया. इसका मतलब मीन कैरेक्टर वैल्यू इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर. सो इट्स अ केस ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन. So mean character value is shifting from one side to the other, so it's a case of directional selection. समझ में आया? So this is a case of directional selection. और देखिए, since the mean character value shifts from one to the other. So mean character value shifts from one to the other. So it's a case of directional selection. The mean character value shifts from one to the other. And you see here, अब देखो, Western Betuleria का नंबर इंक्रीज हो रहा है, फिर पॉल्यूशन हुआ, Western Betuleria का नंबर डिक्रीज हुआ है. एट दैट टाइम Western Carbonica का नंबर इंक्रीज हो गया. 8 पॉइंट ऐसा भी है, दैट इज अ कॉमन पॉइंट, मतलब Western Betuleria एंड Carbonica दोनों प्रेजेंट है.
दोनों प्रेजेंट है, मतलब इक्वल कंडीशन में प्रेजेंट है। देखो इसका नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे, एक ये पॉइंट आएगा जहां पे दोनों ही इक्वल नंबर पे है। एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट देखो, एट दिस पॉइंट बोथ आर इन इक्वल नंबर, बोथ आर इन इक्वल अबंडेंस। समझ में आया? जब एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है ड्यू टू पोल्यूशन, बोथ आर इन इक्वल अबंडेंस। अब फिर देखो इसका नंबर डिक्रीज होना चालू हुआ, बिटुलेरिया का व्हाइट कलर का, और कार्बोनेरिया का नंबर इंक्रीज होना चालू हुआ। और एक चीज आप देखिए, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्शनल सिलेक्शन ग्राफ दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी एंड मेरा, ये डिफरेंस क्या है? ग्राफ निकालिए, पेज नंबर 136 का ग्राफ निकालिए, है ना? तो 120 निकालिए, नया बुक में 120, तो उसका ग्राफ निकालिए। सेकंड ग्राफ देखिए, पहला ग्राफ तो ये है, उसके बाद देखो एनसीईआरटी का ग्राफ क्या है। ओरिजिनल ग्राफ ऐसा है, ओरिजिनल ग्राफ ऐसा है ना? ओरिजिनल ग्राफ ऐसा है। अब इससे जो बीच वाला ग्राफ है वो कैसे चेंज हुआ? ये देख, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। क्यों हुआ? देयर इज अ शिफ्ट इन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। यहां से लेके ये जो था, এটা একটু ছোট করে দিই তাহলে বুঝে যাবে। इसको अगर ऐसे करते हैं हम लोग, देयर इज अ शिफ्ट, इसका जो डिस्टेंस है और इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब देयर इज अ शिफ्ट इन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। लेकिन डिफरेंस ये है, देखो दोनों ग्राफ में इधर भी शिफ्ट है, इधर भी शिफ्ट है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। द डिफरेंस इज, कोई भी देखो एक्स एक्सिस को टच नहीं किया मेरे ग्राफ में। आप देखिए मेरे ग्राफ में किसी भी जगह पे एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, देखा? लेकिन एनसीईआरटी का ग्राफ में टच किया हुआ है। ये डिफरेंस है। क्यों टच नहीं किया? बिकॉज एनसीईआरटी का लाइन है पेज नंबर 132 में, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट वर्ड, लास्ट सेंटेंस देखो 132, मतलब 118 या सॉरी 116, 116 निकालो नया किताब में। फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन में देखो, नो वेरिएंट्स आर कंप्लीटली वाइप्ड आउट लिखा हुआ है। देखा आपने? नो वेरिएंट्स आर कंप्लीटली वाइप्ड आउट, इसीलिए मैंने टच नहीं करवाया। समझ में आया? सो ये टच क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इट डज नॉट टच, इट डज नॉट टच द x axis. Why? Since no variants are completely wiped out. No variants are completely wiped out, है ना? So no variants are completely wiped out, ये फेमस सेंटेंस है माय डियर। क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी वेरिएंट जीरो नहीं होगा। बिकॉज जब एक का नंबर बहुत इंक्रीज हो गया, ऐसा नहीं है कि दूसरा पूरा एक्सटिंक्ट हो गया, उसका भी नंबर रहेगा। एंड बेस्ड ऑन दैट एक्चुअली ये चेंजेस हो रहा है। समझे ना? और पोल्यूशन इंक्रीज होगा तो किसी एक का नंबर बढ़ेगा, पोल्यूशन डिक्रीज होगा तो किसी एक का नंबर एक का नंबर बढ़ेगा, लेकिन कोई भी नंबर जीरो नहीं होगा। समझ में आ गया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और इससे एक टाइप ऑफ एवोल्यूशन को भी डिटरमाइन किया जाता है माय डियर। और एक एडिशन पुराना एनसीईआरटी में वो लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स इवोल्यूशन। सो दैट इज कॉल्ड द रिवर्स इवोल्यूशन। So this is the reverse evolution. This is the reverse evolution. समझ में आ गया? So reverse evolution का समझ में आया क्या? कि एक कंडीशन में एक का इंक्रीज हुआ, दूसरे कंडीशन में एक का इंक्रीज हुआ। So this is what is called reverse evolution. क्या छोटा हो गया? पीक छोटा नहीं हुआ। अरे नहीं नहीं, वो शिफ्ट करा, इसीलिए वो शिफ्ट करा, और वो पीक छोटा नहीं हुआ, वो मेजरमेंट में ये है। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, इसका पॉइंट इस पोजीशन से इसका जो गैप है ना, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। एक सेकंड। एक सेकंड।
चलो हो गया, तो ये डन हो गया। रिवर्स एवोल्यूशन क्यों कहा गया ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, व्हाई इज इट कॉल्ड रिवर्स एवोल्यूशन। और रिवर्स एवोल्यूशन इज अ टर्म दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी, मतलब ये एनसीईआरटी नहीं, एक एडिशन पुराना एनसीईआरटी में रिवर्स एवोल्यूशन टर्म यूज हुआ था। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज वो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है लेकिन एनसीईआरटी का ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन वो टेक्स्ट के बगैर आप एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया वाला कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं। तो वो टेक्स्ट क्या है, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट, एंड वी विल स्टडी दैट एक्सपेरिमेंट राइट नाउ। दैट इज कॉल्ड लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट, ध्यान दीजिएगा। सो द नेक्स्ट थिंग टू बी डिस्कस्ड इज लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट जो है, अब ये एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इसमें क्या हुआ बेटा जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये है, एक डिश लिया गया कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स है, कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स बोलती, सॉरी बैक्टीरिया, आई एम सॉरी, कंटेनिंग बैक्टीरिया। ठीक है, दोनों में बैक्टीरिया है। ठीक है, अब देखिए ये है ए, ये है बी। अब ए को कुछ नहीं कर रहे हैं, बी में हम लोगों ने ऐड किया क्या, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स हैव बीन एडेड। ठीक है, अब क्या हुआ इन दिस केस, ये डिश में कुछ बैक्टीरिया रह गया, अच्छा रेड और ब्लू क्या है, रेड इज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में तो सब कुछ है, इनिशियली तो आपको पता नहीं है कि कौन क्या है। एक है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया और एक और ब्लू कलर जो है वो है एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया। दिस इज एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया, जो ब्लू कलर है वो है एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया, समझे। और जो रेड कलर है दैट इज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। सो दिस इज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, समझ में आ गया। तो एक तो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, एक है एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया, पहले दोनों ही था, अब उसमें एंटीबायोटिक चार्ज किया हम लोगों ने। तो एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया डाइड, एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया, सेंसिटिव बैक्टीरियाज, उसका नंबर ऑलमोस्ट 0 हो गया, but died. But antibiotic, antibiotic resistant bacteria increased in number. तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट स्ट्रेन का नंबर इंक्रीज हो गया। ठीक है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का नंबर इंक्रीज हो गया। अब जब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का नंबर इंक्रीज हो गया, देन व्हाट वी डिड, हम लोगों ने इसको लिया, लेने के बाद ये जो डिश है जिसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरियाज है, ये जो डिश है जिसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरियाज है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक क्लॉथ को रखा, एक क्लॉथ को रखा। सो वी प्लेस्ड अ क्लॉथ ऑन द डिश कंटेनिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरियाज। अब इस क्लॉथ को रिमूव करके दिस क्लॉथ वाज एडेड टू मेनी डिशेस, समझ में आ गया। ये क्लॉथ हर एक डिश के ऊपर हम लोगों ने रखा, ये क्लॉथ को हम लोग हर एक डिश के ऊपर रखा, समझ में आ गया। एंड देयरफॉर व्हाट हैपेंड वाज, हर किसी, इसके वजह से व्हाट हैपेंड वाज एवरी अदर डिश कंटेन्ड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरियाज, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरियाज का नंबर बढ़ गया। ठीक है, every dish contain antibiotic resistant strain. So it is replicating the original antibiotic resistant strain. So replica plate experiment. We have plated these dishes with antibiotic resistant bacteria. है ना? So we have, this means that we have plated, that is plating of the dishes with antibiotic resistant bacteria.
बात ये है माय डियर, इससे कंक्लूजन क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। कंक्लूजन क्या था इससे? दैट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया एग्जिस्टेड इवन बिफोर द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। माने नेचरे ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया छिलो, नेचर में ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे। देयरफॉर देयरफॉर जब एंटीबायोटिक्स यूज हुआ तो एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया का नंबर डिक्रीज हुआ और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का नंबर इंक्रीज हुआ। बट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन नेचर, सो दिस इज कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स इन पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? प्री एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स इन पॉपुलेशन। वेरी मच इन द सेम वे आप देखिए, जब बिस्टन बिचुलेरिया का नंबर इंक्रीज हुआ था पहले, पोल्यूशन से पहले, और बिस्टन कार्बोनेरिया का नंबर डिक्रीज हुआ था, तब भी तो बिस्टन कार्बोनेरिया एनवायरमेंट में था, लेकिन सिचुएशन के वजह से एक का नंबर इंक्रीज हुआ, एक का नंबर डिक्रीज हुआ। फिर सिचुएशन चेंज हो गया, इसका नंबर डिक्रीज हो गया, इसका नंबर इंक्रीज हो गया। फिर कंट्रोल किया, फिर इसका नंबर इंक्रीज हो गया, इसका नंबर डिक्रीज हो गया। यही चल रहा था। सो इसका मतलब नेचर में ऑलरेडी वेरिएंट्स थे। कंडीशन हम लोगों ने ऐसा लगाया जिसमें एक वेरिएंट का नंबर डिक्रीज हुआ, एक वेरिएंट का नंबर इंक्रीज हुआ। एम आई क्लियर? सो इससे जो कंक्लूजन आया माय डियर, ये फेमस कंक्लूजन है बेटा। कंक्लूजन क्या है? दैट इज antibiotic resistant bacteria existed even before the use of antibiotics. So antibiotic resistant bacteria existed even before the use of antibiotics. समझ में आ गया? That is pre-existing variants in population were there. So pre-existing variants in population, है ना, is responsible for evolution. वो responsible है evolution के लिए. So एक question, actually मैंने ये क्यों कराया लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेट? अगर एंटीबायोटिक लिखा है एनसीईआरटी में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स, है ना, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट, ये लिखा है ना एनसीईआरटी में। तो एंटीबायोटिक इसी का कॉन्सेप्ट से हम लोग अगर सोचे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज हर्बिसाइड रेसिस्टेंट पेस्ट्स, और पेस्ट বলবো হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্ট কি হয় ওগুলো? পেস্টই তো ওগুলো রে। হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্ট পেস্ট, পেস্টিসাইড রেজিস্ট্যান্ট पेस्ट, सेम पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट पेस्ट्स। ये जो है, ये जो भी कॉन्सेप्ट्स है माय डियर, दीज थिंग्स विल सर्वाइव। सपोज पेस्टिसाइड यूज किया तो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट का नंबर बढ़ेगा, लेकिन पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट एक ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन नेचर, इट वाज अ प्री एग्जिस्टिंग वेरिएंट इन पॉपुलेशन, तभी जाके उसका थ्राइविंग हुआ है बाद में, नहीं तो नहीं होता। समझ में आ गया? और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है माय डियर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखोगे, है किसी के पास एग्जाम्पलर? मैंने ही तो शेयर किया, मैंने ही तो शेयर किया। ओ अच्छा, रुक जा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ना मेरे पास है क्या? हाँ, वो नहीं था ना, एक सेकंड। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किसी के पास नहीं है? आ गया, भेजते हैं। किसको भेजे? किसका है? हाँ तो नाम तेरे, पटा पटा पटा। কিরে ভাগ্যলক্ষ্মী, গল্প করছিস কেন? না না মানে
क्वेश्चन नंबर 8 देख। পড়েছো? পড়ো, क्वेश्चन पढ़ो। गॉट इट? तो प्री एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स इन पॉपुलेशन, ये मैंने इसीलिए पढ़ाया। ये पढ़ाने के लिए यू नीड टू नो Ledderberg replica plate experiment. If you do not study Ledderberg replica plate experiment, then you cannot understand pre-existing variant in population किसको कहते हैं। Pre-existing variant in population antibiotic resistant bacteria में भी होगा, herbicide resistant pest में भी होगा, pesticide resistant pest में भी होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, environment में pre-existing variants होंगे और human काम के लिए, ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट के लिए कुछ कुछ वेरिएंट का नंबर इंक्रीज होगा, कुछ वेरिएंट का नंबर डिक्रीज होगा। दिस इज द प्रिंसिपल, समझे ना? इसको प्री एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स इन पॉपुलेशन, ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है? 8 ठीक है, डन हो गया ये वाला, डन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कंप्लीट करवा दिया हमने, ये कंप्लीट करवा दिया, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग अ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, दैट इज डार्विनियन थ्योरी। पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारे एविडेंसेस उसके अंडर में आता है बेटा, उसको पढ़ लेंगे, समझे ना? तो इसको इरेज कर, इसके फोटो ले लो बेटा, इसका फोटो ले लीजिए। और रिवर्स एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हर किसी को? ये तो दिक्कत नहीं है। चलो, तू फोटो उठा लो, तुमको फोटो उठाना नहीं आता? यू डोंट हैव? उधर से उठाएगा तो कैसे आएगा फोटो? तुम लोग अजीब है। मैं कितना अच्छा फोटो उठाता हूँ ऐसे ही साइड से, और एक भुवनेश्वरी सामने बसे बोले ओए छट। हाँ, भेंगे फैल, भेंगे फैल, भेंगे फैल, तोड़ दे। हेलमेट टूटा? अभी तक नहीं टूटा? तो वैसा हेलमेट खरीद के फायदा क्या जो टूटता नहीं है गिरने के बाद? भाग्यिस बोल ली, जानता हूँ ना। डन हो गया, चलो नेक्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इरेज करें इसको। क्या है क्वेश्चन? है लेडरबर्ग का क्वेश्चन डॉक्टरली में है, क्योंकि वो तो पुराना किताब में है और उसको हटाया भी नहीं, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन है। एक्चुअली एक एडिशन पुराना एनसीईआरटी में है ना क्वेश्चन, माने ये टॉपिक, और मॉड्यूल में भी है, आप लोग निकाल के देख लीजिए, मॉड्यूल में दिया हुआ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो आंसर करने के लिए ये लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट चाहिए, तो इसीलिए पहले मैंने एक्सपेरिमेंट पढ़ा दिया। तो हम लोग बात करेंगे डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। गल्प को चीज क्यों क्यों छे? हाँ, सुनाई नहीं दिया क्या? की को चीज? चलिए नेक्स्ट, डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है,
जिसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है बेटा, हाँ, तो कई सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है इस जगह से। और इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, वॉट एवर आई डू इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फोटो मत ली, इसके साथ लिखिए मत, इसका फोटो लेके इसके बाद लिखिएगा और उसको जॉट डाउन करके एक जगह पे वो एनसीईआरटी में लगा दीजिएगा। अब देखिए, चलिए, डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है दैट इज, देखो, चार्ल्स डार्विन was deeply influenced by the population theory of थॉमस मैल्थस। तो थॉमस मैल्थस का जो पॉपुलेशन थ्योरी है उस पे वो बहुत डीपली इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। अब पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ थॉमस मैल्थस क्या कहा? व्हाट वाज द पॉपुलेशन थ्योरी? दैट इन अ गिवन पॉपुलेशन, एनसीईआरटी का लाइन है, इन अ गिवन पॉपुलेशन no two individuals are alike. In a given population, no two individuals are alike. ये लिखा है एनसीईआरटी में 135, मतलब अप्रोक्सीमेटली वही 117 नको तो 119 है, देखो सेकंड पैराग्राफ है लिखा है, ठीक है। उसमें एक जगह पे लिखा है, देखो, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, देखो लिखा है। तो ये जो थ्योरी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सच है। कोई भी टू इंडिविजुअल्स, मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी अगर होगा तब भी वो सेम नहीं है। इवन सियामीज ट्विंस अगर है, सियामीज ट्विंस समझते हो जिसका हेड जुड़ा हुआ है, उसका भी वो दोनों इंडिविजुअल सेम नहीं है। तो इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट वन फ्रॉम द अदर, समझे ना। सो इन अ गिवन पॉपुलेशन नो टू इंडिविजुअल्स, कभी ऐसा नहीं होता दो इंडिविजुअल एकदम सेम है, पॉसिबल नहीं है। तो एनीवे, ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, डार्विन researched, अच्छा, went on a voyage, जिस वॉयज का नाम है HMS बीगल, है तो, and went to a particular island called Galapagos and researched for 20 years, for almost 20 years in the Galapagos Island, which is actually approximately 500 miles west to central Chile. चिली बोल के जो साउथ अमेरिका में जो देश है उसके 500 miles to the west. तो for almost 20 years in the Galapagos Island हो गया. And then similar kind of things were also done by Alfred Wallace. तो similar things, similar expedition was also done by Alfred Wallace. तो सिमिलर एक्सपेडिशन वाज आल्सो डन बाय अल्फ्रेड वेलेस, और अल्फ्रेड वेलेस एक्सपेडिशन कहां किया था? इन एन आइलैंड कॉल्ड मलय आर्चिपेलागो। तो इन एन आइलैंड कॉल्ड मलय आर्चिपेलागो। तो इन एन आइलैंड कॉल्ड मलय आर्चिपेलागो, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेडिशंस वर आल्सो डन बाय अल्फ्रेड वेलेस इन एन आइलैंड कॉल्ड मलय आर्चिपेलागो, ठीक है, ये हो गया। अब ये सब के बाद डार्विनियन ऑब्जर्वेशन क्या था? एक्चुअली डार्विन ऑब्जर्व्ड the Darwinian finches. First of all, he observed the shape of the beaks of certain birds changed with the change in habitat. तो वो ऑब्जर्वेशन के बाद और कई सारे ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किया, जिससे उन्होंने कंक्लूड किया दैट नेचुरल सिलेक्शन इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ द एवोल्यूशन। तो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स कंक्लूड किया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है प्रोडिगलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रोडिगलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है, रिप्रोडक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है इन द नेचर, बट स्पेस एंड एरिया कांस्टेंट। समझ में आ गया?
तो रिप्रोडक्शन हो रहा है लेकिन स्पेस एंड एरिया कांस्टेंट। स्पेस एंड एरिया कांस्टेंट समझते हो, क्योंकि अर्थ में जो लैंड मास है वो तो कांस्टेंट ही है, तो स्पेस एंड एरिया कांस्टेंट। एंड देन ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक। और ये जो स्ट्रगल है माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रगल कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन, इंट्रा स्पेसिफिक। Number two, interspecific. And number three, environmental. So intraspecific, interspecific, and number three, environmental. So there are three kinds of struggle, my dear. And let me tell you, interspecific struggle is the most potent force for organic evolution. ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और जबरदस्त लाइन है। इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स फॉर অর্গানিক এভলিউশন। এনসিইআরটি যার কাছে পুরনো বইটা আছে তারা দেখো পেজ নাম্বার 234, কম্পিটিশনের সেকেন্ড লাইন। পুরনো বইটা আছে, তোর বইতে কোন পাতায় আছে আমি জানি না, আছে কি না তো देख। कंपटीशन पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, देख कंपटीशन है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन निकालिए उसमें। तुम्हारा पुराना किताब है या नया? न्यू। पॉपुलेशन इंटरेक्शन निकालो, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। कंपटीशन का सेकंड सेंटेंस देखो, ठीक है? ये लाइन एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, सुना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो गया, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करते करते क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट? केम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस क्यों आया? कॉज्ड ड्यू टू, दिस इज कॉज्ड ड्यू टू ब्रांचिंग डिसेंट। दिस इज कॉज्ड ड्यू टू ब्रांचिंग डिसेंट। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन 134, या तो 118 में लिखा हुआ है, वो यही पता है, लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ तो है ना। तो ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखा हुआ है। तो ब्रांचिंग डिसेंट है क्या? ये लिखा मैंने ब्रांचिंग डिसेंट। तो वेरिएंट्स कैसे आए? ब्रांचिंग डिसेंट से आए। अब ब्रांचिंग डिसेंट क्या है वो आपको मैं शेयर करूंगा, देखिए जरा, जबरदस्त चीज है, ऑथेंटिक चीज है, देखिए। चलो, क्या कहा मैंने? ओ अच्छा, क्या कहा? इतने सारे, एक सेकंड बेटा, अभी बताते हैं। अभी एक चीज शेयर करेंगे, जिंदगी में नहीं देखा आपने वो, गारंटी है, देखिए मजा आ जाएगा। बोलो कि तू आज आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना बड़ा झूठ। ওকে, তোর নাম্বারটা কোথায় গেল? আবার পাঠিয়েছে। আচ্ছা, भेज दिया देख, सबको भेज, सबको भेज। ये फोटोग्राफ देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबको भेज दिया। ये फोटोग्राफ देखिए, दिस इज द पिक्चर दिस वाज द एक्चुअल फोटोग्राफ गिवन बाय डार्विन। ब्रांचिंग डिसेंट का यही फोटोग्राफ है दैट वाज गिवन बाय डार्विन। ये कभी आपने नहीं देखा।
अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। देखिए, एक रूट जैसा, ब्रांच जैसा है ना, ब्रांचेस ऑफ अ रूट। अब ध्यान से देख, नीचे से ऊपर जाएगा, समझे ना। नीचे जब शुरू हो रहा था, उधर देख, नीचे जब शुरू हो रहा था, दो कैरेक्टर है ए एंड बी, दो कैरेक्टर से शुरू, ऐसे करके शुरू हुआ ना, दो कैरेक्टर से शुरू हुआ, देखा आपने। और देख मिक्सिंग हो रहा है बीच में, देखो एनास्टोमोसिस लिखा हुआ है। एनास्टोमोसिस का मतलब मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स हुआ, और फिर फाइनली जब एकदम ऊपर धक्का लगाया, उसमें देख ए से लेके एच तक कैरेक्टर हो गया। शुरू हुआ था दो कैरेक्टर से, अब देख कितने सारे कैरेक्टर्स बन गया। दिस इज कॉल्ड डिसेंट विद वेरिएशन। तो वेरिएंट्स बना ना ए से लेके एच तक। तो वेरिएंट्स किस लिए बना? ब्रांचिंग के लिए बना, और मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स के लिए बना। सो दिस इज कॉल्ड डिसेंट विद वेरिएशंस। एम आई क्लियर? सो दिस इज ब्रांचिंग डिसेंट गिवन बाय डार्विन। यही डार्विन का फोटोग्राफ, बुझते पेरेছো? वन ऑफ द मोस्ट यूनिक थिंग जिंदगी में देखा। ठीक है, चलो, दिस इज द फोटोग्राफ गिवन बाय डार्विन। सो दिस इज, हाँ, तो ये क्यों था, कभी पूछा नहीं साइंस लैब में आपने। दिस इज द ओरिजिनल फोटोग्राफ ऑफ डार्विन। नेम की प्लांट का नेम, उससे क्या होगा? कोई भी रूट में हो सकता है, ये किसी भी रूट में तो हो सकता है। सोच, रूट सोच, जो जमीन के नहीं, वो तो ब्रांचेस बनाएगा, प्लांट का क्या से फर्क पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, कोई पर्टिकुलर प्लांट नहीं। उन्होंने ये रूट का जो फीचर है, रूट में देखो आप, एनास्टोमोसिस भी होता है, बीच में मर्जिंग भी होता है, और वेरिएंट्स भी होता है। शुरू हुआ था एक ब्रांच से, और कितने सारे ब्रांचेस बन जाता है। तो दैट इज वेरिएशन, दैट इज ब्रांचिंग डिसेंट। कैरेक्टर में भी ऐसा होता है। उन्होंने यही कहा कि कैरेक्टर में भी ऐसा ही होता है। तो किसी भी जगह पे अगर वेरिएंट्स आएंगे, तो कैरेक्टर्स इस तरह से चेंज होंगे, है ना। कितने वेरिएंट्स आते हैं धीरे 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 धीरे, जब जनरेशन टू जनरेशन बनता है ना। देखो, जब अर्थ का शुरुआत हुआ था, फिर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस बना था, उसके बाद वेरिएंट्स, कितने सारे वेरिएंट्स हुआ। कोई भाग्योलोकी हुआ, कोई कैटरपिलर हुआ, है ना। तो कितने सारे, ये भी है ना। तो कितने सारे वेरिएंट्स बना, ठीक है ना। तो दिस इज ब्रांचिंग, दिस इज डिसेंट, आई एम सॉरी, वेरिएशंस विद डिसेंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्रांचिंग डिसेंट। एम आई क्लियर? और इसीलिए लिखा गया है माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन द टू की कॉन्सेप्ट। अब जो वेरिएंट्स आए, आप सोचिए, जो वेरिएंट्स आया, ध्यान से सुन, जो वेरिएंट्स आए, अगर नेचर सिलेक्ट नहीं करेगा, वो वेरिएंट्स आके क्या फायदा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ब्रांचिंग डिसेंट होना ही जरूरी नहीं है, ब्रांचिंग डिसेंट से वेरिएंट्स आना ही जरूरी नहीं है, उसको नेचर को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा माय डियर। तो इसीलिए ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। समझ में? तो ये जो बना वेरिएशंस, अब देख, अब देख, अब नेचुरल सिलेक्शन होगा, और उसी लिए नेचुरल सिलेक्शन किसका होगा? जो फिट है उसका, है ना। सो नेचुरल सिलेक्शन जब होगा, तो जो फिट है उसी का सिलेक्शन होगा, जो अनफिट है दैट विल पेरिश। यही तो रूल है। तो वेरिएशंस हो गया, ब्रांचिंग डिसेंट हो गया। नाउ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, किसका नेचुरल सिलेक्शन होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द अनफिट, यही तो रूल है। नेचर का रूल तो यही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द अनफिट। तभी तो नेचुरल सिलेक्शन होगा, एंड नेचुरल सिलेक्शन विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन इवोल्यूशन। यही कॉन्सेप्ट है डार्विनियन थ्योरी का, यही कॉन्सेप्ट है। और मैंने एक शब्द लिखा जिसका नाम है फिटेस्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय फिटनेस माय डियर? व्हाट इज फिटनेस? एनसीईआरटी का डार्विन स्पोक ओनली एंड ओनली ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस, एनसीईआरटी लिख रहा है 135 में। तो डार्विन स्पोक 129, तो डार्विन स्पोक ओनली एंड ओनली ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस, अच्छी बात है। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिटनेस? एनसीईआरटी का डेफिनेशन क्या है? जहां देख रहा है वही डेफिनेशन लिखा हुआ है। वो जो पेज निकाला आपने, ब्रांचिंग डिसेंट वाला पैराग्राफ, उसके ऊपर देखिए, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडैप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर, यही डेफिनेशन है। सो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट, इट इज द एंड रिजल्ट of the ability
to adapt and get selected by nature. Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature, my dear. Clear? So, ability to adapt and get selected by nature. तो adapt किस तरह से करेगा? फिटनेस किसका होगा? अगर वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर पाएगा, द कैरेक्टर्स विच विल पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, उसी को तो हम लोग फिट कैरेक्टर कहेंगे. सो दोस कैरेक्टर्स which will pass on to the next generation are the fittest characters. তাই তো? Those characters which will pass on to the next generation are the fittest characters. यही तो रूल है. That is the fittest character. तो वो अगर fit character है, that is passing on to the next generation, therefore Darwin talked only and only of reproductive fitness. Therefore, Darwin spoke only and only of reproductive fitness. समझे? क्लियर? अब इसी में एक चीज देखिए, एबिलिटी टू अडेप्ट. एंड एबिलिटी टू अडेप्ट मींस एडेप्टिव एबिलिटी. अब ये जो एडेप्टिव एबिलिटी है, ध्यान से सुनिएगा, है ना? एडेप्टेशन, इसका मतलब क्या? एडेप्टेशन तो ये इनबॉर्न कैरेक्टर है या एक्वायर्ड कैरेक्टर है? हम लोग सिचुएशन में पढ़ते हैं, हम लोग उधर जाके खुद को एडेप्ट करते हैं, ये सब सोचते हैं ना हम लोग. तो एडेप्टेशन ये इनहेरेंट इनबॉर्न कैरेक्टर है या एक्वायर्ड कैरेक्टर है? क्या लगता है आप लोगों को? एक्वायर्ड कैरेक्टर है हम लोगों को लगता है, और -1 मिलने के लिए ये काफी है. दोनों है बंदा को. उसके ऊपर देखिए, ब्रांचिंग डिसेंट के ऊपर वाला पैराग्राफ में देखिए, एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, इट हैज अ जेनेटिक बेसिस. मतलब ये जो एडेप्टिव एबिलिटी है, एडेप्टेशन किसका है? कैरेक्टर का है ना. तो कैरेक्टर इज डिजाइन बाय व्हाट? प्रोटीन्स कहां से आएगा? जीन से आएगा. जीन्स विल बी प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, सो इट हैज अ जेनेटिक बेसिस. सो कोई भी कैरेक्टर, अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऑर्गेनिज्म को किसी जगह पे आपने एक्सपोज किया और धीरे धीरे वो ऑर्गेनिज्म उस जगह पे सर्वाइव करना चालू किया, एंड दैट इज द एडेप्टिव एबिलिटी, और वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है और जन्म के बाद एक्सपीरियंस से आया, वो गलत कॉन्सेप्ट है. अगर उसके अंदर वो जीन नहीं है तो किसी भी कंडीशन पे वो अडेप्ट नहीं कर सकता, वो पेरिश हो जाएगा. और एक चीज याद रखिएगा, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इधर है, उसको एक दूसरे हैबिटेट में हमने लेके चला गया, वो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में उधर सर्वाइव नहीं कर पाएगा. वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा उधर जाके, कुछ दिन बाद वो मर जाएगा, लेकिन सक्सेसिव जनरेशन विल सर्वाइव. कि बोलना बुझते पारले? बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म द जीन्स आर रिसेसिव. जब उसको शिफ्ट किया गया तब वो डोमिनेंट नहीं है, तो वो जीन एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, लेकिन सक्सेसिव जनरेशन में वो जीन एक्सप्रेस करके उसका एडेप्टेशन देगा. ये कभी मत सोचिएगा कि एक ऑर्गेनिज्म को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे लेके चला गया और वो ऑर्गेनिज्म उधर एडॉप्ट कर लिया है. ऐसा नहीं होता. इन देयर लाइफ टाइम वो नहीं कर सकता. आप लोग इधर बैठे हुए हो, पढ़ाई कर रहे हो, हम लोग गाली दे रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, तो ये जो आप सुन रहे हो, आपके अंदर वो जीन है सक्सेसफुल होने का, इसीलिए आप बैठ पा रहे हो, नहीं तो आप बैठ भी नहीं पाते. हर किसी में वो जीन है, वो कैरेक्टर है. अगर वो जीन नहीं रहता, आप लोग सस्टेन ही नहीं कर पाते बेटा. समझे ना? सो दीज आर ऑल कैरेक्टर्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड. इट इज इनहेरिटेड. ये अगर असर्शन है, इसका रीजन है इट हैज अ जेनेटिक बेसिस. एनसीईआरटी का लाइन है, एक है असर्शन, एक है रीजन. समझे? सो एडेप्टेशन इज ऑलवेज इनबॉर्न, नेवर एक्वायर्ड. इसका और एक स्टेटमेंट होगा, एडेप्टेशन इज ऑलवेज इनबॉर्न, नेवर एक्वायर्ड. is always inborn, comma, never acquired. समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत?
So adaptation is always inborn, never acquired. Clear? Is it clear, my dear? हर किसी के लिए बताइए मुझे. अब natural selection, what is natural selection? What is the definition of natural selection? अब natural selection का definition के बारे में हम लोग बात करेंगे. इसका definition क्या है? कहाँ है? NCERT में है? कहाँ है? 137 पुरानो बोई, न्यू बुक 121. सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लास्ट 7 लाइंस, लास्ट 8 लाइंस देखिए. नेचुरल सिलेक्शन का डेफिनेशन मिलेगा आरिश पर. इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस enabling better survival are enabled to reproduce and produce greater number of progeny. ताई तो पढ़ो फिर से. पढ़ना पड़ेगा बेटा, यही डेफिनेशन है. ये याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. नो ऑप्शन, नो इफ्स एंड बट्स, नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. समझे ना? तो नेचुरल सिलेक्शन का डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे. इट इज अ प्रोसेस in which heritable variations enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny. माने इसका मतलब क्या है, my dear? In which heritable variations, that means the variations which can be inherited, that means the variations which pass on to the offspring from the parents, that means these are reproductive variations, these are characters which are reproductively fit. वही variants तो पास करेगा. heritable variations मतलब क्या? fit variations ही तो जाएगा, बाकी तो नहीं जाएगा. समझ में आया? तो heritable variation, that means those variants which can pass on to the offspring from the parent. समझ में आया? Therefore reproductive fitness. तो देख, heritable variation से भी आप those variants, variants माने कि characters, those characters which can pass on to the offsprings from the parent. तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन करेगा जो कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स, those characters are the actual heritable characters. That means those are the fittest characters. That therefore reproductive fitness. Therefore reproductive fitness. तो assertion reason का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया. आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा, ठीक? तो अब जरा ध्यान से सुनिए. enabling better survival, enable to reproduce and leave greater number of progeny. मतलब वो जो स्पेशल कैरेक्टर है, वो जो फिट कैरेक्टर है, वही ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी के अंदर पहुंच जाएगा. सो enable to reproduce and leave behind, leave greater number of progeny. क्लियर कॉन्सेप्ट पुलिशकर? अब तो डेफिनेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हो गया. अब नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे. सो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या आएगा? नंबर 1 स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन. नंबर 2 डायरेक्शनल सिलेक्शन. नंबर 3 डिसरप्टिव सिलेक्शन. तो स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन के बारे में बात करें तो स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, वो जो ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पहला जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरह से है. सॉरी, वो ग्राफ इस तरह से है. प्लांट होगा, एक सेकंड. ये ग्राफ दिया हुआ है. अब इससे जब स्टेबिलाइजिंग के बारे में बात हो रहा है, इससे जब स्टेबिलाइजिंग के बारे में बात हो रहा है माय डियर, तो उसमें आपको ग्राफ कैसा मिल रहा है? ऐसा मिल रहा है. क्यों? व्हाई यू आर गेटिंग दिस ग्राफ? अब देखिए,
This is homozygote, but this is heterozygote. They say जितने ज्यादा वेरिएंट्स होंगे उतना ज्यादा नेचर सिलेक्ट करेगा। एक पॉपुलेशन सोचिए जिसमें न्यूबॉर्न, यंग एंड ओल्ड, तो वो पॉपुलेशन में किसका परसेंटेज ज्यादा होने से पॉपुलेशन स्टेबल होगा? यंग। व्हाई? बिकॉज न्यूबॉर्न मर सकता है, ओल्ड तो मरेगा ही, और यंग जो है वही डिफरेंट कंडीशंस को सस्टेन कर पाएगा, उस कंडीशन से फाइट कर पाएगा, राइट? तो सो द यंग पॉपुलेशन नंबर अगर इंक्रीज होगा, देन वी से दैट द पॉल्यूशन बिकम्स स्टेबल, राइट? तो इस कंडीशन में ये जो ग्राफ है इसमें देखिए, यंग मतलब क्या? डिफरेंट कंडीशन से जूझ सकता है। इसका मतलब क्या है? उसके वेरिएंट ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया माय डियर कि कोई भी चीज में होमोजाइगोसिटी अगर है, प्योर लाइंस अगर है, तो दैट विल नॉट बी सिलेक्टेड ओवर हेटेरोजाइगोट्स। सो इट इज ऑलवेज हेटेरोजाइगोट्स। हेटेरोजाइगोट्स आर यूजुअली, एक्सेप्शन है, यूजुअली सिलेक्टेड ओवर होमोजाइगोट्स। हेटेरोजाइगोट्स आर यूजुअली सिलेक्टेड ओवर होमोजाइगोट्स। इसीलिए एनसीईआरटी पेज नंबर 137, उसमें पेज नंबर 137 दाहिने तरफ एकदम नीचे की तरफ लास्ट 3 लाइंस, उसमें देखो, अरे ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर लास्ट 4th लास्ट लाइन देखो, उसमें देखो लिखा है मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, तो इसीलिए लिखा है मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। ये क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है माय डियर, क्योंकि हेटेरोजाइगोट्स आर सिलेक्टेड ओवर होमोजाइगोट्स। तो ये अगर एजर्शन है, इसका रीजन ये होगा। व्हाई मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड, है ना, इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, बिकॉज हेटेरोजाइगोट्स आर सिलेक्टेड ओवर होमोजाइगोट्स। बुझते पेरेছো? सो इट इज ऑलवेज जहां पे वेरिएशन ज्यादा है वो सिलेक्ट करता है नेचर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। नंबर 2, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। सो अगर डायरेक्शनल सिलेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सो डायरेक्शनल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो ये क्या है? ये कर्व जो है ये थोड़ा शिफ्ट हो जाता है ना? दिस कर्व थोड़ा शिफ्ट होने के वजह से इसका डिप होता है थोड़ा, बुझली? तो आपने पूछा था ना ये माउंट डिप हो जाएगा थोड़ा, ये माउंट ये शिफ्ट होने के वजह से हुआ, इसको इधर हटाने के लिए ये थोड़ा डिप हो गया। समझ में आया? सो मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू, इसका गैप देखो और इसका गैप देखो, तो मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, राइट? तो so more number of next sentence NCERT 137, more number of individuals acquire value other than the mean character value, other than the mean character value, more number of individuals acquire value other than the mean character value, है ना? हो गया, डन हो गया। तीसरा डिसरप्टिव सिलेक्शन, तीसरा जो है दैट इज डिसरप्टिव। अब ये डिसरप्टिव सिलेक्शन के लिए आप क्या देख रहे हो? द ग्राफ गोज लाइक दिस, दैट इज ये ग्राफ, ये ग्राफ में आप क्या देख रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? देखो, अगर इधर ऐसे ऐसे करें हम लोग, तो इसको कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसमें आप क्या देख रहे हो? जस्ट उल्टा, स्टेबिलाईजिंग का जस्ट उल्टा। देखिए, जस्ट ऑपोजिट टू स्टेबिलाईजिंग, है ना? इधर होमोजाइगोट्स आर सिलेक्टेड ओवर हेटेरोजाइगोट्स। इसीलिए एनसीईआरटी क्या लिख रहा है? देखो, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट क्या है? मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यूज ऑन ईदर साइड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एनसीईआरटी स्टेटमेंट। सो इसमें क्या लिख रहा है? मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स acquire the peripheral character values on either sides of the distribution curve. So more number of individuals acquire peripheral character values on either sides of the distribution curve. Very important. And ये क्यों है? ये अगर assertion है, इसका रीजन क्या होगा? Homozygotes are
सिलेक्टेड ओवर हेटेरोजाइगोट्स। आपको मन में हो रहा है ये किस कंडीशन में होता है माय डियर स्टूडेंट्स? आपको मन में हो रहा है कि सर मुझे बताए ये किस कंडीशन में होता है कि होमोजाइगोट्स आर सिलेक्टेड ओवर हेटेरोजाइगोट्स? इसका एग्जांपल है बेटा, इसका एग्जांपल बहुत बेहतरीन एग्जांपल में आता है बेटा, दैट इज कलर ऑफ ऑयस्टर्स। इसका एग्जांपल है कलर ऑफ ऑयस्टर्स। कलर ऑफ ऑयस्टर्स समझते हो? कलर ऑफ ऑयस्टर्स, कलर ऑफ ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स মানে বুঝতে পেরেছিস? পার্ল অয়েস্টার্স, যেখানে মুক্ত থাকে ওই অয়েস্টারটা। और उसका सपोज कैपिटल आर এটা হলো হোয়াইট, कैपिटल आर स्मॉल आर आई एम सॉरी, अच्छा ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक और स्मॉल आर ब्लैक। ধরো এটা এই কম্বিনেশনটা, एंड देयरफॉर अब देखिए व्हाइट जो होगा दैट विल मिमिक विद द कलर ऑफ सैंड एंड देयरफॉर कैनॉट बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेडेटर्स। ब्लैक जो होगा दैट विल मिमिक विद द कलर ऑफ द रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द सी, on the seashore, that will also be not pointed when marked by the predators, identified by the predators. But pink सोचिए वो चिक चिक करेगा तो इजीली प्रीडेट करेगा, उसको मारेगा, तो पिंक का नंबर रिड्यूस हो गया और ब्लैक एंड इसका व्हाइट का नंबर इंक्रीज हो गया। समझ में आया? हाँ बुझली? नहीं ये टच करेगा, जरूर टच करेगा, ये तो किया है, पिछला ग्राफ किया था, उसका रीजन था ह्यूमन एफर्ट से हुआ है। इसने एक सवाल पूछा, अब इधर तो एक्स एक्सिस टच किया हुआ है सर, कैसी बातें कर रहे हो आप, तो पिछले बार बोला था टच नहीं किया आपने, तो कॉलर चौड़ा कर लिया था अपना। लेकिन माय डियर टच नहीं करेगा, क्यों? बिकॉज इट वाज ह्यूमन एफर्ट जिसके वजह से वो नेचर सिलेक्ट कर रहा था डिफरेंट। ये ऐसा नहीं, समझ में आया? दैट वाज एंथ्रोपोलॉजिक, एंथ्रोपोजेनिक। बुझली? दिमाग का बत्ती जला? हाँ, घुटने से दिमाग अभी दिमाग में है, अच्छी बात, चलो ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको? तो दिस व्हाइट मिमिक्स विद द कलर ऑफ सैंड, मिमिक्स विद द कलर ऑफ सैंड, है ना? दिस वन मिमिक्स विद द कलर ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है? अब चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी हो गया। अब एक और चीज, ये जो एंटायर प्रोसेस ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हुआ, दिस इज द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। पढ़ाया था मैंने, ओरिजिन ऑफ द अर्थ वाज अ प्रोसेस, बट डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, है ना, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। सो डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसके बारे में अगर बात करें हम लोग, तो डार्विनियन थ्योरी of evolution, origin of organisms, is the result on earth is the result of a process। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, and evolution of the origin of the earth is a process, but origin of life on earth by Darwinian theory of evolution is the result of a process। 129 का स्टेटमेंट है ये, 129 स्टेटमेंट माने तुम्हार 113 स्टेटमेंट, 113 का स्टेटमेंट है, देख, हाँ ऊपर ऊपर किसी जगह पे लिखा है, देख ना, कि ना एक है नहीं तो, सॉरी 135 का स्टेटमेंट है, 130 हाँ तोर 135 ना, तोर 119 का सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है ना, हाँ, इज एवोल्यूशन अ प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस, हाँ मार्क कर ले, ठीक है। अब डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया था? डार्विन ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ बीक्स। डार्विन क्या ऑब्जर्व किया था? ऑब्जर्व्ड द चेंज इन द शेप ऑफ बीक्स ऑफ certain birds which they called finches, है ना? तो ओरिजिनल वैरायटी ऑफ द डार्विनियन फिंचेस হলো এরকম ছিল, सपोज दिस इज इट। अब हर एक बर्ड बेस्ड ऑन द चेंज इन द शेप ऑफ बीक्स, बेस्ड ऑन द चेंज इन देयर फीडिंग हैबिट्स, चेंज
in their feeding habits. Right? Due to change in habitat, due to changes in their habitats. Habitat change हो गया my dear. तो habitat change होने के वजह से shape of the beaks of the bird change. Habitat change हो गया तो खाना भी change हो गया, और खाना change हो गया मतलब shape of beak भी change हो गया. Initial जो variety था that was a seed eating variety, है ना. उसके बाद देखो कितने सारे varieties बना, अपना पोजीशन चेंज कर लिया, ये हैबिटेट चेंज कर लिया, अलग अलग वेराइटीज बन गया. कोई फ्रूट ईटिंग, है ना, कोई कोई फिश ईटिंग, तो ऐसे करके वेराइटीज चेंज हो गया. तो सीड इट इनिशियली वाज, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, सीड ईटिंग वेराइटी. पहले था सीड ईटिंग वेराइटी, लेकिन ये अलग अलग वेराइटीज में चेंज हो गया. एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखा आपको. एंड these varieties habitat change किया, so these were adaptive radiation, था ना. so they were adaptive radiation. तो adaptive radiation था ये. so adaptive radiation by divergent evolution, है ना. so this was Darwinian theory of evolution. Darwinian theory of evolution का एक ही प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम, बड़ा जबरदस्त प्रॉब्लम. Darwin actually discussed whatever Darwin said. Darwin talked of continuous variation. Darwin considered continuous variations, जो कि proved wrong after the advent of the mutation theory. Mutation theory में कहा गया it's always a discontinuous or solitary variation. So this concept of Darwinian variation, process is branching descent, process is acceptable throughout, लेकिन the type of variation उन्होंने कहा that is a continuous variation. उन्होंने कहा continuously change हो रहा है, लेकिन continuous change नहीं है, stochastic process. So this was actually discarded by the mutation theory. ह्यूगो डिवराइस का जो म्यूटेशन थ्योरी था, उसमें क्या कहा गया, म्यूटेशन इज सॉल्टेटरी और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, था ना, डिसकंटिन्यूअस. दिस इज द एक्सेप्शन. डार्विनियन थ्योरी एक्चुअली रिजेक्टेड हो जाना चाहिए था, लेकिन केवल ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट के लिए अभी भी डार्विन इज एक्सेप्टेबल. सो इसीलिए एनसीईआरटी लिख रहा है दैट ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, branching descent and natural selection are the two key concepts of Darwinian theory of evolution. Branching descent and natural selection are the two key concepts of Darwinian theory of evolution. समझ में आया? कुछ नया सीखने को मिला? दिस इज इंपॉर्टेंट कि कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए. बोर्ड वर्क को ध्यान से देखिए और इसके बाद इसका फोटो लीजिए और शेयर कर दीजिए. ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट माय डियर. हाँ बोलो, दाड़ा दाड़ा. 6 minutes लेफ्ट. প্রচুর গরম, बहुत ज्यादा गर्मी है बेटा. মার্কেটে লাফালাফি শুরু হয়েছে এখন. এনসিইআরটি ল্যাব ম্যানুয়াল কোথায় পাওয়া যাবে জানি না, কোথায় পাওয়া যাবে.
यस यस, डायरेक्शनलेस, ये भी कह सकते हो। एक ही वेरिएशन का ही प्रॉब्लम है ना, तो ये वेरिएशन, डार्विन कंसीडर कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डायरेक्शनल, कंटिन्यूअस एंड डायरेक्शनल। म्यूटेशन तो नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस, डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डायरेक्शनल। सही बात है, एकदम सही। इसीलिए एनसीईआरटी लिख रहा है इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म। लिखे ना, लिखे ना, तो इवोल्यूशन, इसीलिए तो एनसीईआरटी लिख रहा है इसको, इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस। एनसीईआरटी क्या लिख रहा है, इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस, डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म। लिखा है ना, ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो तो इसीलिए लिखा है। अल्टीमेटली प्रॉब्लम इज विद द टाइप ऑफ वेरिएशन डार्विन टॉक्ड ऑफ। समझे ना, वो उसमें गड़बड़ था, वेरिएशन का मैकेनिज्म ऑफ वेरिएशन, माने मैकेनिज्म, जिस तरह से वेरिएशन आया उसमें मास्टर स्ट्रोक ब्रांचिंग डिसेंट, दैट इज द मास्टर स्ट्रोक ऑफ डार्विन। किस तरह से वेरिएंट्स आया, सोचो, ब्रांचिंग डिसेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, बाय सीइंग द रूट ऑफ अ प्लांट, उनके दिमाग में ये आया था, है ना, इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। सो ब्रांचिंग डिसेंट के बारे में जो चर्चा है वो केवल एनसीईआरटी में लिखा है और डेफिनेटली इन द इंटरनेशनल बुक्स लिखा है। तो ब्रांचिंग डिसेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और नेचुरल सिलेक्शन तो है ही, बिकॉज म्यूटेशन हो या ना हो, सडन सडन चेंजेस हुआ, लेकिन नेचर अगर सिलेक्ट नहीं करेगा, कोई भी चेंजेस हो जाए उसको एक्सेप्टेड नहीं है ना नेचर को, नेचर हैज टू सिलेक्ट दैट। जब तक नेचर सिलेक्ट नहीं करेगा, वॉट एवर चेंजेस हैपन विल गोइंग टू विन, गोइंग विन, है ना। आरिश, समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फोटो लेके ग्रुप में डाल दीजिए। मैं भी ले लेता हूं एक फोटो। छोड़े जा। এমনি ভাবছে স্যার যে কি জ্বালাতন যে আমায় করে, বলিস না। ও, ओके। और 2 क्लास में निपटा देंगे चैप्टर को, एज 2 क्लासेस और 3 क्लासेस एट मैक्स। तो आज कौन सा है, ट्यूसडे, ओहो, दिस वीक दैट चैप्टर क्लोजेस, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, देन वी विल मूव टू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, 9 क्लासेस। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी 8 क्लासेस, उसके बाद माइक्रोब्स, वो तो करा ही दिया था ना आप लोगों को, ना नहीं हुआ था। यस सर, 8 क्लास मैक्सिमम कराबो तो, कंप्लीट হওয়ার পরে रेस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, याद है बेटा? यस प्लीज। हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए थैंक यू सो मच, इसको ध्यान से कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। अब जाके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर सकते हो, और कल के बाद, और कल नहीं परसों के बाद पूरा ही सॉल्व कर सकते हो।